Hello students, I hope all of you doing very well. Myself GS Sharma, PGT Physics KVL model. In this video, I am going to explain a chapter of science of your class 7. That particular chapter is chapter number 13, motion and time. First topic that I am going to discuss with you is motion. Motion and rest are the two states occupied by the object that we encountered in our daily life. Any object is said to be in a state of motion when it changes its position with time with respect to surrounding. यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन टाइम के साथ किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उस स्टेट को मोशन कहते हैं, और अगर वो अपनी स्टेट को नहीं चेंज करता तो स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज स्टेट ऑफ रेस्ट. Many types of motion are there, but I am going to explain you some of the important types of motion which encountered by you in your daily life. First is motion along a straight line. Rectilinear motion is another term which is used to describe this type of motion. Example of this type of motion is motion of a car on a straight road. जब कार स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल करती है उसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होता है. अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल इसका मोशन ऑफ अ पेंडुलम है. सिमिलरली मोशन ऑफ मून around earth is also example of periodic motion, or motion of earth around the sun is also example of periodic motion. But motion of earth around the sun and motion of moon around the earth is also the example of circular motion. Circular motion means the motion of an object along a circular path. These are some important types of motion. Further, I am going to show you some animations for these type of motion. Car is moving along a straight path. Simple pendulum is oscillating in periodic motion, and last one is the example of circular motion. Next thing that I am going to explain you is speed of any object. Actually, speed is the rate of distance traveled by any object. In other words, it can be defined as डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. अगर आपको यूनिट टाइम समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ये समझिए कि टाइम की यूनिट वैल्यू है. यूनिट कोई भी है. फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड इज यूनिट टाइम, 1 आवर इज यूनिट टाइम, 1 मिनट
is unit time. The distance traveled by any object in unit time is called speed. Here there is an example of car and bus. Car travels 100 kilometers in 1 hour, while bus travels 50 kilometers in 1 hour. If we compare these two distances, we are able to see that car travel faster than speed because it travels 100 kilometers in 1 hour, while bus travels 50 kilometers in 1 hour. Now, in our daily life, we used to see that most of the motion are the case of variable speed. मीन्स हम अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि ज़्यादातर मूव करने वाली बॉडीज़ कांस्टेंट स्पीड से नहीं ट्रेवल करती, उनकी स्पीड टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, किसी कार से जा रहे होते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, लाइक फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैफिक होता है, तो स्पीड हमारी चेंज होती रहती है। इवन कभी कभी स्पीड हमारी जीरो भी हो जाती है। तो ऐसे केस में हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन, यानी आप टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दो सिटीज़ हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस 2 आवर में कंप्लीट करी जाती है किसी कार के थ्रू। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 50 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द एवरेज स्पीड of that vehicle. Now another type of motion is uniform motion. Uniform motion means vehicle is moving with constant speed. इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई vehicle equal distances में I should say equal time interval में equal distance cover कर रहा है, और व्हीकल अगर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मोशन का एग्जाम्पल होगा। सेकेंड केस में स्पीड विल बी चेंजिंग विथ टाइम, एंड इन फर्स्ट केस स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज होती रहेगी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी डिवाइसेस की जो टाइम मेजरमेंट के काम आते हैं। हम सभी डेली लाइफ में क्लॉक्स को, वॉचेस को यूज़ करते हैं टाइम मेजरमेंट के लिए। ऑल द क्लॉक्स एंड वॉचेस performs periodic motion because their motion is repeated after certain interval of time. Here I am going to show you a wall clock. Next one is table clock. Another one is wristwatch. Few other examples are here of wall clocks, table clocks and watches. This is another wall clock, another table clock which is of digital form, and another wristwatch of digital form. These are the clocks and watches that are used to measure time.
आप सभी टाइम मेज़र करना जानते होंगे, क्लॉक से या वॉच से, और डिजिटल क्लॉक से तो मेज़र करना बहुत ही आसान है। Further, I am going to explain you what is sample pendulum. आपने दीवार घड़ी या वॉल क्लॉक देखी हो, इसमें एक पेंडुलम होता है जो मीन पॉइंट के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है। सिमिलरली एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर किया जा सकता है। इन अ सिंपल पेंडुलम a metallic bob is suspended from a fixed point by a thread. फिक्स्ड पॉइंट एक स्टैंड हो सकता है जिससे एक बॉब को थ्रेड से बांध के लटका दिया जाता है। इस तरह का अरेंजमेंट सिंपल पेंडुलम होता है। थ्रेड की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होती है। इफ बॉब इज टेकन वन साइड एंड रिलीज्ड, it moves to and fro. The to and fro motion of pendulum is called periodic motion. It is also considered as oscillatory motion. यहाँ पे एक डाउट क्लियर करना है आपको कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता। To and fro motion of an object is called oscillatory motion, but circular motion may also be considered as periodic motion. आप देखते हैं कि हाथ की घड़ी जो होती है, रिस्ट वॉच में जो आर्म्स होते हैं वो भी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करते हैं, बट वो ऑसिलेशन नहीं करते। Here I am going to show you simple pendulum. स्टैंड से थ्रेड को सस्पेंड कर दिया गया है जिसके दूसरे एंड पे बॉब, मेटेलिक बॉब बंधा हुआ है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पेंडुलम। इफ दिस पेंडुलम इज मूव्ड बाय अस ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन एंड left to oscillate, then it will move to and fro about fixed point. Such type of motion are called oscillations. Now in next slide I will explain you what is oscillation. When bob moves from one mean position O to A and to B and further back to O, then it is called one oscillation. सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये बात और क्लियर होगी। When any bob moves from one extreme position to another extreme position and back to A, and that is original position, then it is called one oscillation. A to B and further B to A is called one oscillation. I think it will be clear to you all. Now next term that I am going to explain is time period. Time period means time taken by the pendulum to complete one oscillation. It's called a time period. Here you are observing a simple pendulum. Here I am showing you its all the three positions
extreme position, mean position and other extreme position. Now I'm going to share with you an activity. This activity is to calculate time period of a simple pendulum. Read the paragraph. Set up a simple pendulum with thread of length about 1 मीटर. यानी आपको एक सिंपल पेंडुलम बनाना है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो. मूव द बॉब टू वन साइड एंड रिलीज द बॉब. क्या करना है? आपको बॉब को पकड़ के एक साइड में उसको डिस्प्लेस करना है और फिर उसको छोड़ देना है. मेजर द टाइम टेकन by the bob to complete 20 oscillations by using stopwatch. आपको एक स्टॉप वॉच रखनी है और उस स्टॉप वॉच को जैसे ही आप पेंडुलम छोड़ेंगे, बॉब को छोड़ेंगे, स्टार्ट कर देना है और स्टॉप वॉच को रोक देना है जब वो 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है. फिर आपको टाइम रिकॉर्ड कर लेना है. आप टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे तो इससे आपको पीरियोडिक टाइम पता चल जाएगा और इस एक्टिविटी को आप एक से ज़्यादा बार रिपीट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 ऑसिलेशंस कराए पेंडुलम के और आपको ऐसा करने में 20 सेकेंड लगे. 20 ऑसिलेशंस और 20 सेकेंड टाइम, तो 1 ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 20/20, दैट इज 1 सेकेंड. इस तरह से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं. इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं पेंडुलम की लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन ए, मेन पोजीशन ओ और राइट एक्सट्रीम पोजीशन बी. बॉब को ओ से ए ले जाना है, फिर ए पे छोड़ देना है. बॉब ए से बी आएगा और फिर बी से ए जाएगा. इस तरह से 1 ऑसिलेशन पूरा होगा और इस तरह से 20 ऑसिलेशन इसके आपको नोट कर लेने हैं. ऑब्जर्व करने के बाद 20 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लेना है. अब आप देखेंगे कि इस टेबल में 20 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लग रहा है ये आपको मेज़र करना है. सपोज़ करो आपने 20 ऑसिलेशन में एक बार किया तो वो आपको मिला 20 सेकेंड. एक बार 22 सेकेंड मिला और एक बार फिर से 20 सेकेंड मिला. तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 सेकेंड को 20 ऑसिलेशन से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड आएगा. 20 को 22 से डिवाइड करेंगे, 22 को 20 से डिवाइड करेंगे इनफैक्ट तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा. और अगेन 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकेंड आएगा. तो इस तरह से हमें पीरियोडिक टाइम मिल जाएगा. इस एक्टिविटी से हम पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम बताते हैं कि कौन कौन सी यूनिट है जो टाइम की और स्पीड की यूज़ करी जाती है. बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम जो होती है दैट इज सेकेंड. लार्जर यूनिट्स क्या है? मिनट है, आवर है. दीज आर लार्जर यूनिट्स. इसी तरह से बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज
मीटर पर सेकेंड। लार्जर यूनिट है किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं कि एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में टाइम को कैसे मेज़र किया जाता था। सनडायल का नाम आपने सुना होगा। सनडायल यूज़ किया जाता था जिसमें सन की पोजीशन से स्टिक की इमेज चेंज होती रहती थी, इमेज पोजीशन चेंज होती रहती थी और टाइम पढ़ लिया जाता था। वाटर क्लॉक होती थी, सैंड क्लॉक होती थी। दिस इज सनडायल। This is water clock and this is sand clock. These are the devices that we were using in ancient times. Now let us see how we can measure the speed. How to measure speed? I am taking here an example in which a car travel 100 किलोमीटर distance in 2 hours. तो इससे हमें निकालना है कि क्या स्पीड होगी कार की। तो हमें पता क्या क्या चल गया, डिस्टेंस कवर बाई कार, टाइम टेकन बाई कार। तो स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो न्यूमरेटर में 100 किलोमीटर लिख दिया। टाइम है 2 आवर, तो न्यूमरेटर में 2 आवर लिख दिया, 2 लिख दिया। तो जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो इस तरह से स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। जो कार 100 किलोमीटर 2 आवर में ट्रेवल करती है वो कार 50 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल करेगी और उसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। और अगर अब हमें स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है कार का, तो हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आपके पास जो फॉर्मूला है इसमें लिखा हुआ है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस के साथ 1 आ जाएगा और स्पीड के साथ टाइम आ जाएगा। तो जो रिजल्ट होगा वो होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरह से हम डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं। अब हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द कार और टाइम है 2 आवर, तो 50 इंटू 2 100 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर हमारे पास डिस्टेंस है और स्पीड है तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हमारे पास डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और स्पीड है 50, तो डिस्टेंस को 50 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करेंगे तो 2 आवर आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे टाइम। तो अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स में इनफैक्ट आई शुड से इफ वी हैव a relation in 3 variables and 2 of them are known quantities, then third can be determined. जैसे अगर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास रिलेशन है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस और टाइम पता है तो स्पीड निकल आएगी, स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकल आएगी।
और स्पीड और डिस्टेंस पता है तो टाइम पता है। इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं। अब कुछ और डिवाइसेस की बात कर रहे हैं स्लाइड में अगले। स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर is a device which measures the speed of vehicles in kilometer per hour. Odometer. Odometer is device which measure distance covered by the vehicle. यहाँ पे स्पीडोमीटर आपके सामने है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताता है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर का कॉम्बिनेशन है, इसमें डायल बीच में ये नंबर्स हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता रहे हैं, और ये पॉइंटर है, ये मूव करेगा, ये किसी इंस्टेंट स्पीड बताएगा। इस तरह से हम स्पीड और डिस्टेंस दोनों इस स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के कॉम्बिनेशन से पता कर सकते हैं। In next slide, I am going to tell you how the distance time graph can be drawn. इसके लिए हमारे पास एक टेबल होगी, उस टेबल को यूज़ करेंगे और एक ग्राफ पेपर ले लेंगे। टेबल हमारे पास है जिसमें कि हमें 6 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और डिफरेंट इंस्टेंट्स पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल दी हुई है। टाइम 0 तो डिस्टेंस 0, टाइम 1 मिनट तो 1 किलोमीटर पे व्हीकल है, फर्दर 1 मिनट मूव करता है तो 2 किलोमीटर पे। इनफैक्ट यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 मिनट पे 2 किलोमीटर है, 3 मिनट पे 3 किलोमीटर है, 4 मिनट पे 4 किलोमीटर और 5 मिनट पे 5 किलोमीटर है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इस पर टाइम रखते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखते हैं, और एक्स एक्सिस पे टाइम इंटरवल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और वाई एक्सिस पे जैसे हम यहाँ 1 मिनट रख रहे हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखेंगे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब 0 पे 0 आ गया, 0 टाइम है तो 0 है डिस्टेंस, तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमको। इसके बाद जब हम देखते हैं 1 मिनट है तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट के ऊपर, 1 मिनट के ऊपर और 1 किलोमीटर के सामने एक पॉइंट मिल जाएगा। ये डॉट हमें मिला हुआ है, पहला डॉट। इसके बाद दूसरा डॉट मिलेगा 2 किलोमीटर के सामने और 2 मिनट के ऊपर। तीसरा डॉट मिलेगा हमें 3 मिनट के ऊपर, 3 किलोमीटर के सामने, 3 मिनट के ऊपर और 3 किलोमीटर के सामने, 4 मिनट के ऊपर 4 किलोमीटर के सामने, 5 मिनट के ऊपर 5 किलोमीटर के सामने, 6 मिनट के ऊपर 6 मिनट के सामने। अब इस तरह से सारे डॉट्स को मिला देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यानी कांस्टेंट स्पीड के केस में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि टाइम एक्सिस से सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन होगा। अब आगे हम आपसे डिस्कस करते हैं एक सीसीटी क्वेश्चन। एक पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पैसेज में क्या लिखा गया है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 10 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 10 more meter in second and 10 meter in third second. Here again it is 10 meter in fourth second. The object covers
10 मीटर इन ईच सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट हर सेकेंड में 10 मीटर कवर करता है. द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल. In our day-to-day life, we come across motions where objects cover unequal distances in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or person is jogging. These are some instances in non-uniform motion. So here there are some questions, you have to reply it. First question is, motion of an object is said to be uniform. अब इसी से पढ़ के आपको देना है आंसर. क्या है? It covers equal distances in equal interval of time. Second है, it covers equal distances in unequal interval of time. It covers unequal distances in equal interval of time, and none of these. So answer will be, motion of object is said to be uniform if it covers equal distances in equal interval of time. Next question is, average speed is equal to the actual speed. First option, motion with variable speed. Second option, motion is non-uniform. Third option, motion is uniform. And last option, car is moving along a crowded street. It means you have to find which one is the correct answer of average speed is equal to actual speed. इस केस में एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड सेम होगी. तो जब स्पीड नहीं चेंज हो रही होगी तभी एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड सेम होगी. इट मीन्स इट विल बी द थर्ड आंसर, that is motion is uniform. If motion is uniform, then average speed will be equal to actual speed. Next question is, ratio of total distance to the total time is called instantaneous speed, average speed, average velocity, and none of these. So you have encountered it during the briefing. It is average speed. So correct answer will be average speed. Now last question is, speed is equal to velocity. कब होगा speed velocity के equal? Motion along a straight path in given direction. First option is motion along a straight path in given direction. Second is motion along a circular path. Third is motion is non-uniform. And fourth option is person is jogging in a park. So if motion along a straight path in a given direction, then speed will be equal to velocity. Why? If any vehicle is moving along a straight path from A to B, then this will be the distance as well as displacement both. So distance per unit time will be same as displacement per unit time. So it will be equal to speed and velocity. Here speed and velocity will be same. Now thank you for your patience hearing.